Welcome everyone on this learning platform. We are going to begin the new chapter 16, that is electric current and its chemical effect. Now what is electric current? Current which flows, that is current, and electricity is flow of electron. And how the chemical, how it is related, how it brings the chemical change, chemical effect. Now let's move. We have already learned that materials which allow electricity to pass through them easily are known as conductors of the electricity. You are well aware of the material which allow electricity to pass through are good conductor, while that does not are poor conductor or insulator. Like metals are good conductor, and plastic, wood, bakelite. Bakelite is a black color material, plastic material that is the handles of different utensils. कुकर सॉसपैन वगैरह का जो हैंडल होता है ब्लैक कलर का, दैट इज़ बैकेलाइट, जिससे जो बर्तन है वो गर्म नहीं होता है. सो दैट इज़ बिकॉज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी bakelite is, are some of the better known poor conductor of electricity. Now conduction. Now here we have known that conduction through metals, that is solids. Now here in this chapter we are going to understand what if there is conduction, when liquids start conducting the electricity. Here one thing has to be noticed, that when electricity is passed through a solid, then no chemical change takes place. If electricity is passed through any metal remains that metal itself. There is no chemical change, there is no change in its property. While when it is passed through liquid, a chemical change takes place. Let's see how does it take place. Most of the well-known conductors are materials in the solid state. But what about liquids? Do liquids conduct electricity? Can an electric current pass through a liquid? To check this, let us perform the following activity. What is the activity? Connect a bulb, that is LED, to a battery of 2 cells of 1.5 volt each. You can buy it from the market, and these cells are easily available in the market, using copper connecting wire as shown in the diagram. Now what we are going to do, we are going to test how electricity can be conducted through liquids. Now this is important arrangement, that is called continuity tester. You see the arrangement of this continuity tester. It is essentially a testing equipment which determine if an electric path can be established between 2 points or not, whether this electric path is established between 2 points or not. It has to be tested by this. You can see it is battery, and this is bulb, and if it is connected, it is complete circuit that you have studied in standard 6. So this is continuity tester. Pour some lime water in a clean beaker. Now see the arrangement over here. What you have to do, this is container, and this is continuity tester, okay? And this is copper wire, that is conducting wire, and this is a beaker filled with lime juice, okay? And 2 wires of tester, that is 2 wires of tester. This is kept away from each other. Now you have to take care. You have to take care that it does not touch the bottom of the utensil, bottom of the vessel, है ना. ये इसको टच नहीं होना चाहिए. It has to be hanging in the liquid medium. That is here the liquid is lime water. Now take out the end of the wire from the lime juice and dry and clean them. Now dip them in a beaker containing ordinary tap water. अब यहाँ पर solution change कर देना. Same चीज़, same setup रहेगा, just change the solution.
सोल्यूशन किससे चेंज कर देना, टैप वाटर से। पहले हम लोग क्या लिए, लाइम वाटर, एंड देन वी हैव टू चेंज इट विथ टैप वाटर। नाउ अगेन क्या ये बल्ब जलेगा? अगर ये लाइम वाटर है तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट इट इज़ कंडक्टिंग, इट इज़ मेकिंग द सर्किट कंप्लीट, और इसके कारण यहाँ पर ये बल्ब ग्लो कर रहा था वे इन केस ऑफ लाइम वाटर। टैप वाटर में क्या होगा? और अगर डिस्टिल टैप वाटर की जगह अगर यहाँ पर पहले लाइम वाटर रखा गया, देन टैप वाटर रखा गया, एंड देन डिस्टिल वाटर रखा गया, यू सी द ऑब्जर्वेशन, लाइम वाटर में ग्लो करेगा, टैप वाटर में टू एन एक्सटेंट थोड़ा कम, बहुत कम ग्लो करेगा, जबकि डिस्टिल वाटर में ग्लो नहीं करेगा, इट विल नॉट ग्लो। वाई? बिकॉज देयर इज समथिंग इन द characteristic of this liquid which is allowing the current to flow. Let's see what happens here. Now try repeating this activity using some other liquids like orange juice, tomato juice, vinegar, vegetable oil, glycerin, hair oil, and so on. अगर ये सारा if you are able to do it, just try to do it, or else we will do once in the school and see the interesting result, and you will find that lime juice में bulb will glow. इसका मतलब क्या हुआ? lime juice is a good conductor. tap water glow, क्योंकि tap water में भी कुछ कुछ minerals वगैरह मिले हुए रहते हैं, तो it makes water conducive of electricity. तो this is also good conductor of electricity. distilled water, अब डिस्टिल वाटर में ग्लो नहीं करेगा, डज नॉट ग्लो, इसका मतलब दिस इज़ बैड कंडक्टर। ऑरेंज जूस, यस साइट्रिक है, तो इट विल ग्लो एंड गुड कंडक्टर, तो इट विल बी गुड कंडक्टर। टोमेटो जूस, यस इट विल ग्लो बिकॉज इसमें जूसेस जो भी एसिडिक मीडियम होगा ना, या फिर बेसिक मीडियम होगा, या फिर सॉल्ट होगा, तो उसमें से लिक्विड मीडियम में, तो वहाँ से electricity flow करेगा. We will get to understand why. Because there are free ions which are mobile, which move, which are free to move, which makes the solution conducive of electricity. Vinegar करेगा, थोड़ा कम करेगा, लेकिन करेगा, glow करेगा in a little amount. Good conductor. अपना वेजिटेबल ऑयल यहाँ पर दिया हुआ है, ग्लिसरीन दिया हुआ है, हेयर ऑयल दिया हुआ है, तो ये सारे में ग्लो नहीं करेगा, डज नॉट ग्लो. क्यों? क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं मिलेंगे जो ईज़िली मूव कर रहे हों, तो डज नॉट ग्लो. दिस इज़ बैड कंडक्टर. Now we realize that some liquids do conduct electricity. The above activity shows that while some liquids are good conductors of electricity, there are many that are poor conductor of electricity. The water that we get from different sources like taps, hand pumps, wells and ponds generally contains several salts dissolved in it. As I said कि acidic, basic and salt will conduct electricity. वो कब? molten state में या aqueous solution में अगर है तो ही करेगा, solid में नहीं करेगा. This water is thus a reasonably good conductor of electricity. We should therefore never handle electrical appliances with wet hands or while standing on a wet floor. कहा जाता है ना, गीला हाथ से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं छूना चाहिए, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को नहीं छूना चाहिए. what it will result? It might result in shock. इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. क्यों लगेगा? क्योंकि जो पानी है, जो टैप वाटर है, दैट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट, human body is also a good conductor of electricity. As you know that human body is have liquids and it has salt and acid and base, everything we are having in our body, so which makes our body good conductor. मतलब अगर वो सर्किट पूरा करने में कहीं ना कहीं वो मदद करेगा, तो दैट विल रिजल्ट इन सीवियर शॉक. तो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल यू आर हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. नाउ डू यू नो व्हाट इज़ दिस? डू यू नो में क्या चीज़ दिया हुआ है, ज़रा देखा जाए. एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
But during lightning, an electric current passes through the air. Actually, under appropriate condition, most material can conduct it. It is therefore preferable to classify materials as good conductors or poor conductor instead of classifying them as conductor or insulator. यहाँ पर हम लोग, क्योंकि whatever materials we are having in a particular condition, it starts flowing electricity even if it is insulator. even मतलब एयर तो है, एयर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है, लेकिन लाइटनिंग में क्या होता है, जब फ्लैश लाइट लाइटनिंग से ट्रीज जल जाते हैं, लोगों का डेथ भी हो जाता है. वाई? बिकॉज एयर से जो लाइटनिंग है, दैट इज़ ऑल्सो करंट दैट इज़ इन enormous ह्यूज अमाउंट दैट इज़ वेरी डेंजरस. तो वो कैसे होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बना तो एयर से तो उसको करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होता है. आफ्टर अ लिमिट, अब जैसे कि एक सपोज़ कि देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ ऑफ अ वेरी काम नेचर, जिसको जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन उसको भी अगर टेस्ट किया जाएगा और उसको बार बार कुछ ऐसा कंडीशन दे दिया जाएगा तो उसको भी गुस्सा आ सकता है. तो मतलब सिमिलरली एट एनी पर्टिकुलर कंडीशन, एक लिमिट के बाद वो अपना इंसुलेशन ब्रेक कर देता है, यानी एयर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है. सो कॉजेज़ ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स. अब लिक्विड में क्या वजह है, व्हाट आर द रीजंस दैट मेक्स लिक्विड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेट अस फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ लिक्विड. क्या होता है, लेट्स सी दिस एक्टिविटी. नाउ टेक सम डिस्टिल वाटर. What is there? Okay. We now know, अब हम लोग को पता चल गया है कि डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द एक्टिविटी वी हैव डन इन बाय फर्स्ट एक्टिविटी. Distilled water is a bad conductor of electricity. Now dissolve a small amount of common salt. अब वही जो अरेंजमेंट, जो कंटिन्यूटी टेस्ट जो हम लोग किए, जो बीकर में हम लोग लाइम वाटर लिए, फिर जो कॉपर वायर को यहाँ पर लगा करके एक हम लोगों ने सर्किट पूरा किया, तो क्या हुआ कि जब डिस्टिल वाटर रखा गया तो इट डिड नॉट ग्लो, द बल्ब डिड नॉट ग्लो. लेकिन उसी डिस्टिल वाटर में अगर सॉल्ट, थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ सॉल्ट जो हम लोग घर में जनरली खाते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड जब डाला गया इन दिस डिस्टिल वाटर, व्हाट डू वी ऑब्जर्व. जब यही वाला सेटअप में, दिस वाले सेटअप कंटिन्यूटी टेस्टर में अगर ये टेस्ट किया जाएगा तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट नाउ द वाटर इज़ दैट सेम डिस्टिल वाटर स्टार्ट conducting electricity when a small amount of salt is mixed in it. Now repeat the activity using dilute hydrochloric acid, that is HCl, dilute caustic soda, sodium hydroxide, that is NaOH, in place of common salt. ये क्या है, ये एसिड है एंड ये बेस है. और ये तुम लोग यू मस्ट हैव, यू कैन रिकॉल कि इन एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टैंडर्ड 7 HCl प्लस NaOH क्या बनता है, NaCl. हाँ, दिस इज़ एसिड बेस रिएक्शन, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ट्राई टू रिकॉल. और क्यों होता है, क्योंकि ये आयोनाइजेशन, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये न्यूट्रल सॉल्ट है. चलो, वाई डू, तो इसमें व्हाट यू विल ऑब्जर्व, रिपीट द एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कास्टिक सोडा. Now yes, you have to be careful. In place of common salt, observe the bulb glowing in each case. सारे केस में अगर ये सारा चीज़ यूज़ किया जा रहा है, किस में, कंटिन्यूटी टेस्टर का जो बीकर बना है ना, बीकर में जो सोल्यूशन रखा हुआ है उसमें अगर ये सारा चीज़ यूज़ किया जा रहा है तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इसमें जो डिप किया रहेगा वायर, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. Why do salt, acid or caustic soda make the water more conductive to electricity? Common salt consists of positive charged sodium and negatively charged chlorine ion. The water not only breaks sodium chloride into electrically charged sodium and chlorine ions but also separate these ions. Now see here, एक समझने वाली बात है,
याद करने वाली बात है, ट्राई टू रिकॉल। जब हम लोग क्लास 7 में केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग एक एनायन पढ़े थे एंड कैटायन पढ़े थे। एनायन जो नेगेटिवली चार्ज है एंड कैटायन जो पॉजिटिवली चार्ज है। लाइक एक पूरा लिस्ट बना हुआ था जिसमें सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस 1, हाइड्रोजन प्लस, मैग्नीशियम डबल प्लस, इस तरह से दिया हुआ था। और कैटायन में हाँ ये कैटायन है, दीज आर कैटायन। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है दैट इज़ कैटायन एंड जो नेगेटिवली चार्ज होता है दैट इज़ एनायन। और एनायन में हम लोग का OH माइनस था, राइट, SO4 माइनस, दीज वर एनायंस, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जब पानी में डाला जाता है तो ये जो है ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करने से क्या होगा कि अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो ये मोबाइल हो जाएगा तो ये कंडक्ट करने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी को। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट पेज। It is the movement of these ions within the solution that makes distilled water conductive to electricity. We thus realize that the flow of electricity in the liquid is due to the movement of ions in them. मतलब अगर इस बीकर में ये जो कंटेनर है इसमें जब प्योर वाटर रखा गया, दैट इज़ डिस्टिल वाटर रखा गया, तो इसमें फ्री आयंस नहीं थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने में हेल्प करें। लेकिन जैसे ही सॉल्ट या फिर एसिड और या बेस डाला गया तो क्या हुआ, इट स्टार्ट्स हैविंग आयंस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक अगर Na प्लस है तो ये पॉजिटिव आयन है और अगर Cl माइनस है तो दिस इज़ नेगेटिव आयन, दैट इज़ एनायन। ओके, तो ये जब ये ब्रेक कर गए, इसमें जैसे ही एक्वस सोल्यूशन पानी में डाला गया तो जो ऐसे जब जिसका फॉर्मूला जो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे थे वो ब्रेक कर गए एंड स्टार्ट फ्लोइंग द electricity. The molecules of the salt, acid and bases on being dissolved in water are known to break up. मतलब ये NaCl ब्रेक कर गया किस में, Na प्लस और Cl माइनस में। फ्री पॉजिटिव एंड नेगेटिव मॉलिक्यूल मोबाइल आयंस। मोबाइल मीन्स मतलब दैट इज़ फ्री टू मूव। These free mobile ions allow the passage of electricity current through the solution, making it conductive. We call such conductive solution as electrolytes. अब ये जो सोल्यूशन जो डिस्टिल वाटर में हम लोग सॉल्ट डाल दिए या फिर एसिड डाल दिए या फिर बेस डाल दिए, तो ये जो सोल्यूशन जब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए कैपेबल हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स. वी विल कॉल इट electrolyte when the solution start conducting electricity. Now what this electrolytes के बारे में थोड़ा और जाने हम लोग. So we say that a compound याद है compound क्या होता है भाई, compound is a pure substance. Try to recall compounds are the materials of two or more components, two or more atoms or elements that conduct electricity. देखो कंपाउंड होना चाहिए, उसमें दो, जैसे NaCl है, इट इज़ प्योर सब्सटेंस एंड कंपाउंड, तो इसमें दो होना चाहिए जो ब्रेक करने के लिए. सिर्फ अगर एक रहेगा तो ब्रेक क्या होगा, तो कंपाउंड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन मीन्स जैसे कि वैक्स को, कैंडल वाले वैक्स को मोल्टन उसको गला दिया जाता है, यानी वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. गला करके क्या मतलब क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है. वी warm it to make it to bring it in the molten state. Similarly अगर salt वगैरह है या वो salt acid base कोई भी अपने solid state में electricity conduct नहीं करेगा. What we have to do, either it has to be in aqueous solution यानी पानी में मिला होना चाहिए, या फिर ये liquid form में होना चाहिए, यानी molten state में होना चाहिए, or aqueous solution state and which simultaneously undergo decomposition. मतलब जैसे ही जाए तो वो ब्रेक होना शुरू करे, टूटने लगे. when an electric current passes through it is an electrolyte. किसको electrolyte कहते हैं, a compound that conduct electricity. मतलब हमारे इस केस में जब हम लोग बीकर में जो पानी डिस्टिल वाटर में जो सॉल्ट या फिर एसिड या फिर बेस मिलाए तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, इट
वो उसमें जैसे ही डाला गया वो डिकम्पोजिशन हुआ क्या चीज़ का, जो भी हम लोग सॉल्ट या फिर एसिड बेस जो भी डाले वो डिकम्पोज कर गया, मतलब ब्रेक कर गया, वो अपने एनायन और कैटायन में ब्रेक कर गया, डिफरेंट आयंस में ब्रेक कर गया, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक कर गया, जिसकी वजह से व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू इट, इट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट. ओके, सो वी कैन से जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी करंट उसमें पास कराएंगे तो उसमें ब्रेक होने लगेगा. और सो दिस इज़ इलेक्ट्रोलाइट. वी क्लासीफाई इलेक्ट्रोलाइट्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. अब स्ट्रॉन्ग क्या होगा, जिसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें ज़्यादा आयंस मिलेंगे, यानी ज़्यादा आयंस मोबाइल होंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो वो उसका क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब वो ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा. जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा जिसमें कम आयंस बनेंगे. दिस इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट टू विच इलेक्ट्रोलाइट्स ब्रेक इनटू आयंस. राइट, कि इलेक्ट्रोलाइट्स कितने आयंस को कितना ब्रेक कर पा रहा है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स दैट गेट आयोनाइज्ड completely to form free mobile ions in the solution. Hence, a large number of free mobile ions are available in them to conduct electricity. अब जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट, ये क्या होगा कि फुली आयोनाइज हो जाएगा. फुली मतलब 100% डिसोसिएशन हो जाएगा. पानी में डाला जाएगा ना तो पूरा का पूरा वो ब्रेक कर जाएगा. तो ब्रेक कर जाएगा, पूरा ब्रेक करेगा. अगर सपोज कि 100 या 1000, नहीं ये सही नहीं रहेगा, मतलब जितने अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड या बेस डाला जा रहा है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएगा, सारे के सारे. जैसे कि अगर तुम लोग एग्ज़ाम में 100 लोग अपीयर हुए और 100 के 100 पास कर गए तो क्या हो गया, अच्छा रिज़ल्ट हो गया, यानी वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट हो गया. जबकि अगर ऐसा हो कि 100 अपीयर हुए लेकिन उसमें से 60 ही पास कर पाए, तो क्या हो गया, उसका डिसोसिएशन कम हुआ, मतलब कम लोग पास किए, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ. मतलब वो वीक सेक्शन कहलाएगा कि सारे लोग पास नहीं कर पाए, तो दैट इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड को अगर पानी में डाला जाएगा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग. प्योर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, copper sulfate CuSO4, right? Can you recall the names of the compound copper sulfate CuSO4? Now weak electrolytes, these are electrolytes that get ionized partially, यानी सारे लोग पास नहीं करते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं, जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं. Form free mobile ions, hence only a small number of free mobile ions are available in them to conduct electricity. There is one question, if you have seen up to this part, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो you tell me one answer whether the vegetable oil is good conductor of electricity or not. Answer whether the vegetable oil is good conductor or bad conductor. It is just to test whether you have seen up to this part. Okay, so let's see, there are some example of weak electrolyte and strong electrolyte. Some of the examples of acetic acid, ammonium hydroxide and tap water. Here is the list. Strong इलेक्ट्रोलाइट, सी वाटर क्यों होगा, उसमें बहुत सारा सॉल्ट मिनरल्स मिला रहता है, तो जैसे सी वाटर उसमें बहुत सारा सॉल्ट भी रहता है. यू नो दैट कि कभी अगर समुद्र में गए हो गए तो हाउ इट टेस्ट. तो नाइट्रिक एसिड, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जिसमें मिला वो, सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्वियसली. एंड दे सी हियर, कभी भी नेवर एवर सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए. सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में वाटर नहीं डालना चाहिए. दैट इज़ वेरी डेंजरस एज इट गिव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट. बहुत ही विग्रस वायलेंट रिएक्शन होता है जिससे कि जलने का खतरा रहता है. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिससे
मतलब लोग उतने ज़ोर से वो उछलेगा सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही पानी डाला जाएगा तो इट में कॉज सीवियर बर्न। तो क्या किया जाता है, डाइल्यूट कैसे किया जाए भी H2SO4 को। तो H2SO4 को डाइल्यूट जब किया जाता है तो उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी मिलाया जाता है इन ऑर्डर टू मेक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 as dilute acid, dilute sulfuric acid. See here, pure sulfuric acid needs to be handled with extreme care and caution. बहुत ध्यान से, never add water to sulfuric acid to dilute it. We get dilute sulfuric acid by adding, मतलब उल्ट ध्यान देना है कि पानी को सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं मिलाना है। क्या मिलाना है, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। वी गेट dilute sulfuric acid by adding a few drops of sulfuric acid to water. Any such dilution if needed must be done under supervision में तो करना ही चाहिए। Now do you know a non-electrolyte does not provide ions in its solution and therefore current does not flow. इलेक्ट्रोलाइट जो होगा जिसमें आयंस रहेंगे फ्लो करने के लिए विच विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसका अपोजिट होगा। दो सच सोल्यूशन, सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट वाटर, अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड that is CCl4 and carbon disulfide that is CS2. Okay, and however these can ionize various other substances when they are put in them. जैसे कि पानी में salt या acid मिलाने से वो as a solution, that is as a aqueous solution, it becomes conductive of start conducting electricity. Similarly ये जो डिस्टिल अल्कोहल और कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड डाइसल्फाइड ये सारे क्या करेंगे, वो एज ए सॉल्यूशन में अगर उसमें कुछ मिले, इस ये सारे सॉल्यूशन में अगर अदर सब्सटेंस मिलाया जाए तो दे हेल्प एज टू बिकम, दे आर रेडी, दे आयोनाइज द मटेरियल दैट इज पुट इनटू इट लाइक सॉल्ट और एसिड और बेस। Now conversion of chemical energy into electrical energy. अब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना बहुत इजी सा एग्जांपल हमारे घर में, हर घर में, जैसे इन्वर्टर से क्या होता है जिसमें H2SO4 भी यूज़ होता है, डिस्टिल वाटर भी यूज़ होता है और उससे क्या होता है कि हमारे घर की बिजली जलती है। या फिर टॉर्च ले लो या फिर घड़ी की बैटरी ले लो या फिर मोबाइल की बैटरी, ऑल दीज आर converting chemical energy into electrical energy. We know that it is possible to convert one form of energy into another. That's very clear. Endless होगा कि energy is always a conservation of energy, मतलब it cannot be created or destroyed. It can only change its form. Energy कभी भी destroy नहीं होता, ये मतलब ये बोला जा रहा है अभी for the time being यही मानना है, और ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। द लिस्ट ऑफ कन्वर्सन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर इज़ ऑलमोस्ट एंडलेस, मतलब वो चलते ही रहता है। जैसे हीट एनर्जी से वाटर बना, वाटर से फिर उसका अलग अलग फॉर्म बना, लाइक उसके स्टीम को कुछ फॉर्म में यूज़ किया गया, उसके एनर्जी को फिर मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया गया, मैकेनिकल एनर्जी से मोशन में लाया गया, मतलब देयर आर एंडलेस, यू कैन रिलेट इट। ओके, द इलेक्ट्रिक सेल्स वी टॉक्ड अबाउट इन क्लास 6 gives us electrical energy at the expense of chemical energy, right? Just now we had the example of different batteries. We can therefore say that the cells are an example of conversion of chemical energy into electrical energy. It was an Italian scientist, ये याद रखना, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। Alessandro Volta, who is Italian scientist. Alessandro Volta, who gave us the first practical source of such conversion in the year 1790. His arrangement is known as voltaic cell. Now there is one question for all of you, that name the scientist
who invented voltaic cell. And what is voltaic cell? Voltaic cell is a device which converts chemical energy to electrical energy, right? It converts chemical energy to electrical energy. The chemical reaction that take place inside the cell because of the flow of electrons, hence electricity is produced. एंड सिंपल वोल्टेइक सेल कैसे बनता है भाई? 2 इलेक्ट्रोड डाल करके. 2 इलेक्ट्रोड क्या होता है? दैट इज ऑफ मेटल in contact with an electrolyte. Now see here, this is the arrangement of a voltaic cell. You can see this is tester, this is continuity tester, और इसी को किससे कनेक्ट कर दिया गया? मेटल से. Now see here, this is also copper is also metal and zinc is also metal. और यहाँ पर क्या चीज़ डाला गया है? एक इलेक्ट्रोलाइट डाला गया. इलेक्ट्रोलाइट इज द सोल्यूशन इन फ्रॉम विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड. तो ये इलेक्ट्रोलाइट है. इलेक्ट्रोलाइट किसका है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का है. तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द वोल्टेइक सेल. अब इसमें होता क्या है? सी डियर स्टूडेंट्स ओवर हियर दैट व्हेन what is happening when electricity is formed in batteries, from the batteries से जब इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, जैसे टॉर्च जल रहा है या फिर घड़ी चल रही है या फिर मोबाइल ऑन हो रहा है, व्हाट इज़ दैट कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जा रहा है. मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है, राइट? अब यहाँ पर देखो, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने एक ऐसा सिस्टम को इन्वेंट किया जिसमें कोई केमिकल ऐसा कोई अरेंजमेंट, इन लोग नया अरेंजमेंट दिया कि यहाँ पर कोई केमिकल नहीं है. जस्ट सी है, यहाँ पर कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाया हुआ है. देयर इज़ नो बैटरी इन द सोल्यूशन. कैन यू सी इट? देयर इज़ नो बैटरी इन द सोल्यूशन. बट when even though there is no battery in the solution, the bulb will glow when this such kind of arrangement is done. What is the arrangement? This is electrode. जब भी ऐसा जो रॉड यूज़ किया जाता है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बोला जाता है. और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड बोलेंगे. और ये इस जिंक को नेगेटिव बनाया उन्होंने, और इसको जो नेगेटिव रॉड रहेगा उसको बोला जाएगा कैथोड. नेगेटिव वाला क्या बोला जाएगा? कैथोड. एंड पॉजिटिव वाला क्या बोला जाएगा? एनोड, राइट? नाउ सी हियर, जैसे कि आयंस कैन बी कैटायन और एनायन, उसी तरह से इलेक्ट्रोड कैन बी कैथोड और एनोड. कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव. अब कुछ तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोडाइल्यूट सल्फ्यूरिक सोल्यूशन लिया गया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें फ्री आयंस हैं, और इसमें 2 मेटल डिप किया गया. इसका मतलब जैसे ही इसमें मेटल को डाला गया, देयर मस्ट हैव समथिंग हैपेंड, कुछ तो हुआ होगा. देयर वुड हैव सम केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो किया. एंड दिस अरेंजमेंट इज वोल्टेइक सेल. Okay, so here just like in battery where chemical energy is converted into electrical energy, उसी तरह से यहाँ पर बिना बैटरी के यूज़ किए हुए यहाँ पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है. तो इसका मतलब है यहाँ कुछ तो हो रहा होगा जिसकी वजह से बल्ब ऑन हो रहा है, ग्लो कर रहा है. तो when 2 rods of zinc and copper known as electrodes are dipped in a solution of dilute sulfuric acid, there are chemical reaction within the system. It is these reactions that help us to get electrical energy from chemical energy. मतलब यहाँ पर chemical reaction हो रहा है when we connect its 2 rods to a torch bulb जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, LED using metal wires जो कि यहाँ पर टेस्टर हम लोग continuity tester यूज़ किया है. A current flows and the bulb LED lights up. The voltaic cell can therefore act as a source of electric current और electrical energy. मतलब इस voltaic cell से electrical energy produce किया
जा रहा है। नाउ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ कन्वर्सली यहाँ पर पहले हम लोग क्या बात किए कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पहले हम लोग क्या किए, कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैसे कन्वर्ट हो रहा है, क्या कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब केमिकल इफेक्ट, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, किसका, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका केमिकल इफेक्ट कुछ है, मतलब अगर किसी सोल्यूशन से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जाए तो उसमें कुछ केमिकल चेंज आएगा। चलो पढ़ते हैं। वी नाउ रियलाइज दैट केमिकल चेंजेस इन अ लिक्विड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ द रिवर्स, इज द रिवर्स ऑल्सो पॉसिबल? कैन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ लिक्विड रिजल्ट इन केमिकल चेंज? जैसे कि केमिकल चेंज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा था, तो इसी का उल्टा क्या इलेक्ट्रिक करंट से कुछ केमिकल चेंज हो सकता है? मतलब पहले केस में हम लोग क्या पढ़े कि केमिकल चेंज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, राइट? केमिकल चेंज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी से कुछ केमिकल चेंज प्रोड्यूस हो सकता है? देख रहे हो, उल्टी बात है, इट इज़ कन्वर्स, मतलब अपोजिट बात हो रही है। पहले केस में हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, जैसे कि बैटरी का केमिकल एनर्जी यूज़ हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी से क्या केमिकल चेंज हो सकता है, केमिकल इफेक्ट कुछ उसका हो सकता है? चलो यस पढ़ते हैं। Michael Faraday, a well-known British experimental physicist, began his experiment on the passage of electricity through liquids in 1834. ये यहाँ पर जब लिक्विड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें फ्री आयंस होंगे जो मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करेंगे। नाउ अगर इफ़ यू हैव रेड अप टू दिस पार्ट, इफ़ यू हैव वॉच्ड द वीडियो अप टिल दिस पार्ट, टेल मी why Michael Faraday is famous, what is his invention? Okay, so he observed interesting chemical changes, effects taking place when an electric current passes through an ionic solution. The resulting effects are known as chemical effect of current. Faraday called this phenomena resulting from the passage of electricity through liquid as electrolysis. क्लास 7 में याद करो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हुआ था, जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कराया जाता है, तो वाटर किस चीज़ में ब्रेक करता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसका मतलब चेंज आया, राइट? दिस इज़ बिकॉज इट्स केमिकल चेंज, बदल गया, यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर ये ब्रेक कर गया, अलग अलग एलिमेंट में ब्रेक कर गया, इसका मतलब केमिकल चेंज आया, क्योंकि इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वाटर। यू ट्राई टू रिकॉल व्हाट इज़ केमिकल चेंज। नाउ व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ प्योर मेटेलिक कंडक्टर, वेदर सॉलिड और लिक्विड, एग्जाम्पल मरकरी, मतलब सॉलिड लिक्विड किसी से भी, there is no chemical effect, that is there is no change in the chemical composition of the conductor, there is only the usual heating effect of the current। हाँ भाई, ये तो तुम लोग जानते ही हो, क्लास 7 में पढ़े हो कि भाई हीट में जब पढ़े हो तो कॉपर वायर यूज़ होता है, वो मेटल्स गर्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सुने हो कि कॉपर को अगर गर्म किया जाए तो वो गोल्ड में चेंज हो जाए या फिर वो कुछ और ही मेटल बन जाए, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें कोई अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। किस में चेंज नहीं आता है, किसकी वजह से चेंज नहीं आता है, हीट की वजह से कोई चेंज नहीं आता है। करंट अगर उसमें फ्लो कराया जाए तो उस मटेरियल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता है। लेट अस नाउ परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द काइंड ऑफ केमिकल इफेक्ट्स that take place when electric current passes through an ionic solution। अब ionic solution वही हुआ, इलेक्ट्रोलाइट,
इलेक्ट्रोलाइट में आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, तो दैट इज़ आयनिक सोल्यूशन। तो आयनिक सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराया जाए तो क्या होता है? टू डेमोन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, नाउ सी हाउ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज बीइंग डन हियर, passing of current through water. Let's see this. अब arrangement, see the arrangement. Arrangement is कि ये टेस्टर ले लिया गया है और यहाँ पर एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रेफाइट पेंसिल रॉड्स ले लिया गया है और सर्कुलर कार्डबोर्ड लगा दिया गया है टू होल्ड दिस। Now what solution is used here? That is tap water. और टैप वाटर क्या होता है? कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। और ग्रेफाइट क्या है? वो भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये जो सर्किट पूरा कर लिया, एक बना दिया गया, एक अरेंजमेंट कर लिया गया। अब क्या है, जैसे ही इस सर्किट को कंप्लीट किया जाएगा तो क्या होगा कि गैस बबल निकलने लगेगा, मतलब यहाँ पर बबल फॉर्म होने लगेगा, which will indicate something. What it will indicate? It will indicate that some changes are going on over here in the chemical here in the solution. Now here one thing you have to notice that in previous activity, that is in voltaic cell में हम लोग क्या कर रहे थे कि वहाँ पर बैटरी नहीं लगा रहे थे, वहाँ पर हम लोग एक सोल्यूशन, एक बिना बल्ब लगाए और एक अरेंजमेंट किए, और उस अरेंजमेंट की वजह से जिसमें जिंक रोड और कॉपर रॉड लगाए थे, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किए थे, तो उसमें बल्ब ग्लो कर रहा था, राइट। अब इसमें हम लोग को उल्टा करना है कि बल्ब नहीं लगाना है, यहाँ पर हम लोगों ने बैटरी लगा दिया, मतलब इसका उल्टा कर दिया कि वहाँ पर बल्ब ग्लो करा दिया। इसका मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा था। नाउ वी हैव टू शो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि एक अरेंजमेंट किया कि बैटरी लगा दिया। अरेंजमेंट उल्टा हो गया, जस्ट वोल्टेइक सेल में और ये वाले में डिफरेंट अरेंजमेंट है, कन्वर्स उल्टा अरेंजमेंट है। ना सी हियर, इस जगह पर ये करने के बाद अगर ये बैटरी जब कंप्लीट हुआ ये, तो यहाँ पर क्या हुआ कि समथिंग देयर वाज सम चेंज ओवर हियर। यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कुछ डाल, टैप वाटर क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा ऐड कर दिए, तो क्या हुआ कि मोर ऑफ द रिएक्शन टुक प्लेस। और ये इस साइड नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या जब वाटर ब्रेक करता है तो क्या बनता है, H2 प्लस O2। तो और H2 प्लस O2 क्या होगा, H2 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव जो होगा वो कहाँ पर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब इस टर्मिनल यहाँ पर जो ये जो है इसमें जब ऐड किया गया, इसको और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाया गया, तो क्या हुआ कि H2O में H प्लस, सी हियर इट इज़ नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ पॉजिटिव। तो क्या होगा कि पॉजिटिव वाला यह इस रॉड पर जा कर के, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर जा कर के इकट्ठा होने लगेगा, राइट। अब इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, हाइड्रोजन जो है वो कंबशेबल है, तो यहाँ पर अगर लाया जाएगा बर्निंग स्टिक तो वो पॉप साउंड करेगा। So this is one of the arrangement to prove that there will be what, chemical change by using electricity. You will get to know what is there. Now see here, you can see the activity more carefully and understand it. Are seen getting formed near the electrode. कौन से इलेक्ट्रोड, यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रोड के पास, नेगेटिव के पास, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के पास, लेकिन जब हाइड्रोजन इकट्ठा होगा तो कहाँ पर होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, कैथोड।
Now what is there? Were immersed in water and a steady current was passed through it. Of oxygen and hydrogen are produced. The oxygen bubbles are formed. Yeah, see here, the complete explanation is there, is given here. The oxygen bubbles are formed on the electrode core called anode. एनोड मतलब पॉजिटिव रॉड की तरफ क्या जमा होगा, ऑक्सीजन बबल फॉर्म होगा connected to the positive terminal of the battery, and hydrogen bubble are formed on the other electrode, that is at cathode, that is negative terminal, connected to the negative terminal of the battery. We thus conclude that the passage of an electricity current through an ionic solution can cause chemical change. Of course it is, there is a chemical change, क्योंकि electrolysis of water हो रहा है, मतलब कि वाटर का ब्रेकिंग हो रहा है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच प्रूव्स दैट देयर इज अ केमिकल चेंज ब्रॉट बाय बैटरीज, दैट इज फ्रॉम केमिकल. द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, कि भाई इलेक्ट्रोड्स जो डिप किया जा रहा है वो कैसा है, नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. यस, अगर सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ा दिया जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्मूथली और ज़्यादा होगा. वेरेज अगर कम होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम होगा. और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कैसा है कि वो कितना तेज़ी से अपने ऊपर इस चीज़ को डिपॉजिट करवाता है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. सम ऑफ द प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट इलेक्ट्रोड्स एंड विद इन द सोल्यूशंस आर metals may get deposited at the electrode surface. ये एक इसका बहुत एप्लीकेशन है कि अगर परमानेंट इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट इलेक्ट्रोड्स, मतलब जो इलेक्ट्रोड्स डिप हुआ है उसके ऊपर अगर कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ सेपरेशन हो रहा है. देयर इज़ सम सेपरेशन विच हैव वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. Gaseous bubbles may get formed near the electrodes. Changes of color of solution may occur due to the dissolution of different ions. ये क्या चीज़ है, ये बता रहा है कि केमिकल चेंज हो रहा है किस में, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जा रहा है. कैसे पता चल रहा है कि मेटल एक जगह जमा हो रहा है, गैसेस बबल निकल रहा है, गैसेस बबल निकल रहा है, इसका मतलब कुछ तो अंदर हो रहा है. और सोल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है, राइट. कलर कैसे चेंज होगा कि अगर मान लो कि किसी एक ऐसा कलर है जिसका डिपॉजिट दूसरे वाले पर हो रहा है, तो वो कलर फेंट करने लगेगा, इसका मतलब देयर इज़ केमिकल चेंज. डू यू नो द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट इज़ पैसेज ऑफ करंट थ्रू एन आयनिक सोल्यूशन is different from the conduction of electricity through the metals in two different ways. Flow of current can cause chemical reaction. Unlike conduction in metal, matters here gets actually transported through the solution. मतलब conduction मतलब डिफरेंट कैसे है, सॉलिड में तो कुछ होता ही नहीं है, देयर इज़ नो केमिकल चेंज, जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस में चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है. और कंडक्शन में एक्चुअली जो मेटल होता है वही ट्रांसफ़र हो जाता है. अब इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इज देयर. द केमिकल इफेक्ट ऑफ current electrolysis have some important scientific and industrial application. We now enlist some of these applications. Extraction of metals from ores. When extraction of ores are the minerals from where the metals can be extracted profitably, easily, in more convenient way. तो जब एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है का यूज़ बहुत वाइड है. होता ये है कि जो भी नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स है दे आर नॉट इन प्योर स्टेट. तो अब जब उसको इन द प्योरिफिकेशन ऑफ एन इम्प्योर मेटल बाय यूजिंग द केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट, उसमें क्या होता है कि जैसे अरेंजमेंट वो जो है जिसमें इलेक्ट्रोड लगा करके यूज़ किया जाता है, तो अ थिक रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल्स इज़ मेड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एनोड, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी.
और उसके बाद क्या किया जाता है, एक थिन स्ट्राइप इज, उसमें प्योर मेटल का यूज़ होता है। थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब बैटरी का यूज़ होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। वाटर सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी प्योरीफाइड इज टेकन एज, जिसको प्योरीफाई करना रहता है उसी के इलेक्ट्रोलाइट को लिया जाता है, और जब करंट पास किया जाता है तो मेटल स्टार्ट डिजॉल्विंग फ्रॉम द इम्प्योर जो बड़ा सा हम लोगों ने रॉड लिया, इम्प्योर मेटल का जो रॉड लिया, उसमें से मेटल जो है, प्योर मेटल डिज़ोल्व होने लगता है किस में, इलेक्ट्रोलाइट में, और फिर वहाँ से वो चला जाता है उसके जो प्योर फॉर्म वाला जो हम लोगों ने कैथोड बनाया है उसके ऊपर वो जमा होने लगता है, राइट। सो द मेटल प्रेजेंट इन डिसॉल्व फॉर्म इन इलेक्ट्रोलाइट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड इन द प्योर फॉर्म। द इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड। इम्प्योरिटीज़ कहाँ पर रह जाता है, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। और इस तरह से कौन कौन से मेटल को किया जा सकता है, जैसे कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, ये सारे मेटल्स को प्योरीफाई किया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय द chemical effect of electric current. Next is electro refining. What is electro refining? Is the process of obtaining pure metal from the impure one by the process of electrolysis. Again यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर हम लोग मेटल प्योर फॉर्म में ला रहे हैं, अब उसको और ज़्यादा रिफाइन करना है. फॉर एग्जांपल इन इलेक्ट्रो refining of copper, a pure copper rod is made the cathode and the impure copper rod as anode. Same with copper sulfate solution taken as the electrolyte. इसमें मतलब वही चीज़ है लेकिन इसका और रिफाइन करना है, राइट. Then electroplating हुआ the process of depositing a thin layer of any desired metal on another materials by passage of electric current is known as electroplating. We can जैसे कि चांदी के ऊपर जब गोल्ड का जो परत चढ़ाया जाता है, एक कवरिंग चढ़ाया जाता है, दैट इज़ electroplating. तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन of electrical effect of current. And one activity is described over here, that how electroplating can be done. Now see here what is there. So here let's understand the electroplating. What is the arrangement over here? The arrangement is that we have to electroplate the zinc with copper plate. Copper deposition should be here. यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर हम लोगों ने सोल्यूशन जिससे प्लेटिंग करना है उसका हम लोग को सोल्यूशन लेना है. तो हियर वी हैव टेकन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, ये जब अरेंजमेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा तो क्या होगा, सम रिएक्शन विल टेक प्लेस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से कुछ केमिकल रिएक्शन होने वाला है. तो इलेक्ट्रिसिटी से जब केमिकल रिएक्शन होगा तो कॉपर सल्फेट जो कंपाउंड है दैट विल ब्रेक इनटू Cu+2 plus SO4. Okay, I am not able to write properly. What will happen? The arrangement will be like this. Okay, let's do it. Where we were here. Now see here, try to understand. I am not able to write. It seems that मुझे लिखने में कुछ परेशानी हो रही है.
मेरा पेन कहाँ चला गया? I lost my pen. I'll try to understand by the words I'm saying. देख लो. Okay, चलो. Now see here, listen to me carefully. कि यहाँ पर हम लोग लिखने का कुछ हो जाता तो सही रहता. Something has gone wrong. Okay, dear children, that's all for today, and we will be studying electroplating in the next class. Thank you and bye bye.